مووی کے آغاز میں ایک سائنسدان کو دکھایا گیا ہے۔ وہ ایک پراسرار مخلوق کو اپنے جسم میں منتقل کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں نیلے رنگ میں بدل جاتی ہیں اور وہ ایک ویئر وولف میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی منظر یہاں گرتا ہے۔ اس کے بعد فلم کا لینگ زون نامی اہم کردار دکھایا گیا ہے جو اپنی گاڑی سے سامان پہنچا رہا تھا۔ پھر لینگ زون خبریں سنتا ہے کہ شہر میں کچھ لوگ پراسرار طریقے سے غائب ہو رہے ہیں۔ اسی دوران لینگ زون کو اپنے چچا یونگ کا فون آتا ہے اور وہ اپنی سالگرہ کی مبارکباد دیتا ہے۔ پھر وہ اپنے راستے میں ایک الٹی کار کو دیکھتا ہے۔ وہ اس کار کے آدمی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ اس گاڑی کی طرف جاتا ہے تو فلم کے آغاز میں نظر آنے والی مخلوق یہ اس لڑکے کے جسم سے نکل کر لینگ زون کے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ نتیجتاً وہ بھیڑیے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک فوج جو وہاں پہلے پہنچ چکی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ اسے پکڑنے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ جیسا کہ لینگ زون ویئر وولف میں تبدیل ہو جاتا تھا، پھر وہ وہاں سب کو بغیر کسی مشکل کے مار ڈالتا ہے، لیکن ایک خاتون فائٹر نے گرین لیزر سے اس پر فائر کیا۔ پھر وہ فوراً بھاگ جاتا ہے، لیکن اس فورس کا لیڈر اس سے بالکل خوش نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس شخص کی تلاش میں تھا جو اس مخلوق کے ساتھ بالکل مطابقت پیدا کر سکے، اس لیے اسے ابھی تک ایسا کوئی آدمی نہیں ملا تھا۔ دوسری طرف لینگ زون گھر کے قریب آتا ہی عجیب طریقے سے جانوروں کی طرح کھانا کھاتا ہے۔ یہ بالکل جانوروں کے جیسے سلوک کرتا ہے۔ آخر میں اسے زیادہ کھانے کی وجہ سے قے بھی آ جاتی ہے۔ وہ ویئر وولف کا عکس جھلکتا ہے جب وہ خود کو آئینے میں دیکھتا ہے۔ نتیجتاً وہ بہت خوف زدہ ہے اور وہ اپنے باتھ ٹب میں ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ پھر جب وہ بیدار ہوتا ہے تو وہ اپنے اندر کچھ تبدیلیوں کا مشاہدہ کرتا ہے، چونکہ اس کی سننے کی صلاحیت بڑھ گئی تھی۔ اسی دوران وہ ایک خبر سنتا ہے جو نشر ہو رہی تھی کہ 12 سال پہلے کی خراشیں نظر آئیں۔ انہیں کل رات بھی یہی تلاش ملی۔ یہ جان کر لینگ زون بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ جب لینگ زون صبح اپنے کام پر جاتا ہے تو اس کا باس اس پر اپنا غصہ ظاہر کرتا ہے، کیونکہ وہ کل رات اپنی بھرے ہوئے سامان کی گاڑی سڑک پر چھوڑ گیا تھا۔ بعد میں لینگ زون کا باس غصے میں اسے ڈبے سے مارنے کی کوشش کرتا ہے تو اس نے جوابی وار کیا۔ نتیجے کے طور پر یہ دیوار پر حملہ کر سکتا ہے اور دیوار پر اتنی زور سے مارا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے دیوار پر شگاف پڑ جاتا ہے۔ اس کا باس یہ دیکھ کر بہت خوف زدہ ہے اور لینگ زون وہاں ایک لفظ کہے بغیر اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ادھر دکھایا گیا کہ انسان نے لینگ زون پر نظر رکھی ہوئی ہے اور لینگ زون سڑک پر چلتی ایک چھوٹی بچی کو بھی حادثے کا سامنا کرنے سے بچاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ اپنا بچپن بھی یاد دلاتا ہے جہاں 2 بچے اسے چھیڑ رہے تھے، لیکن لینگ زون اپنی کمزوری کی وجہ سے کوئی اقدام کرنے سے قاصر ہے۔ اسی وقت اس کا دوست وہاں آ کر اسے بچاتا ہے۔ اسی دوران وہ اپنی یاد میں لاتا ہے کہ آج اس کے دوست کا باکسنگ میچ ہے، تو وہ فوری طور پر اپنے دوست کے میچ دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے، جہاں یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس کے دوست نے اپنے حریف سے میچ جیت لیا۔ اس کے باوجود اس کا حریف اسے نیچے دھکیل دیتا ہے۔ اسی وقت لینگ زون اسے پکڑتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ اسی دوران لینگ زون کے باس کا بیٹا وہاں آ جاتا ہے۔ اس نے باکسنگ میچ کے لیے لینگ زون کو چیلنج کیا اور اس نے اسے قبول کر لیا۔ لینگ زون ایک غصے سے اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے جب ان کی لڑائی ہوتی ہے۔ فورس کا لیڈر اسی وقت نظر آتا ہے جس نے ابھی تک لینگ زون پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ فلم کے شروع میں دکھایا گیا سائنسدان وہ کوئی اور نہیں بلکہ لینگ زون کے والد ہیں، جس کی موت کسی وجہ سے ہوئی، اور لینگ زون کی والدہ بھی کسی بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئی تھی۔ نتیجتاً لینگ زون بچپن سے ہی اکیلا تھا۔ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ لینگ زون ان کے تجربے کے لیے کسی کمپنی کی آخری امید تھی، کیونکہ لینگ زون کے جسم میں موجودہ وہ مخلوق اس کے جسم سے پوری طرح جڑی ہوئی تھی۔ اس لیے فورس کا لیڈر اپنے ممبر سے کہتا ہے کہ جلد از جلد لینگ زون کو پکڑ لیں۔ اس کے برعکس لینگ زون اپنے دوست کے گھر پر تھا جب وہ بیدار ہوا۔ وہ لینگ زون سے پوچھتی ہے کہ تم نے میرے منع کرنے کے باوجود یہ چیلنج کیوں لیا؟ وہ اسے بتا رہا ہے تو اسے اپنے دوست کے چہرے پر پٹی نظر آئی جس کا تعلق ایک کمپنی سینیولین سے تھا۔ اس کمپنی کے لیے در حقیقت لینگ زون کے والد اور وہ خاتون خدمت کرتے تھے، وہ خاتون سپاہی جس نے اس رات لینگ زون میں اپنی بندوق سے فائر کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد لینگ زون کا دوست اسے اپنے بھائی کی تصویر دکھاتا ہے جو انتہائی پراسرار طریقے سے غائب ہو گیا تھا۔ لینگ زون اسے بتاتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو اسی کمپنی میں دیکھا ہے۔ اسی جگہ پر اس کمپنی کے ممبران لینگ زون کو پکڑنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب لینگ زون خود کو چھپانے کے لیے ان کی گاڑی کے نیچے چھپ جاتا ہے اور وہ ان کا پتہ لگانے کے لیے اپنا سیل فون ان کی گاڑی میں چھوڑ دیتا ہے۔ بعد میں لینگ زون کے دوست نے اس سے پوچھا وہ یہاں کیوں آئے تھے؟ لینگ زون نے اسے بتایا کہ وہ مجھے پکڑنے کے لیے یہاں آئے تھے کیونکہ میرے پاس ایک مخلوق ہے جس پر وہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ لینگ زون اس بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے یونگ نامی اپنے چچا کے پاس جاتا ہے
जब लैंग जॉन अपने चचा से मिलने लेबोरेटरी में जाता है तो उसने देखा कि इसमें आग लगी हुई है। वो इसे आग से बचाता है और अपने चचा योंग से इस कंपनी के बारे में पूछता है, लेकिन इससे इस बारे में कोई इल्म नहीं था। इसके बाद जब लैंग जॉन वापस लौट रहा था, फिर देखा कि कोई दोबारा इसका पीछा कर रहा है। इस वक्त इसने इसे पकड़ लिया और वो इस लड़के को अपने दोस्त के पास ले जाता है। वो लड़का इससे कहता है वो इसका पीछा नहीं करना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ इस कंपनी के बारे में जानना चाहता है। तो वो इसका पीछा कर रहा था और वो इसके साथ हैकर भी है जिसने एक लम्हे में खतरनाक मुजरिमों को पकड़ लिया था। तो वो इस लड़के को अपनी टीम में शामिल कर लेता है क्योंकि वो लड़का इस कंपनी के बारे में पूरी मालूमात लैंग जॉन को पहुंचाता है। वो इसे कहता है ये एक ऐसी कंपनी है जो तेल की तिजारत के लिए मशहूर है, लेकिन दर हकीकत इनका कारोबार कुछ और है। इस कंपनी का एक तारीख पहलू भी है, जैसा कि वो दूसरे ममालिक से गैर कानूनी कीमियाई हथियारों की तिजारत करते हैं, और ये वही कंपनी है जहां लैंग जॉन के वालिद और चचा खिदमत अंजाम दिया करते थे। दरे इर्सना वो लैंग जॉन के दोस्त से भी कहता है कि इसने अपने भाई क्या लापता होने से पहले इससे राब्ता किया था। वो ये भी बताता है तमाम लापता लोगों को लापता होने से पहले एक गेम खेलने का मौका दिया जाता है। लैंग जॉन की दोस्त भी इससे इत्फाक करती है क्योंकि इसके भाई को भी यही पेशकश मिली थी। अगले दिन लैंग जॉन अपने दोस्त के साथ कहीं घूम रहा था। उसी वक्त उसे उस लड़के का फ़ोन आता है जिसने इस कंपनी का तमाम डेटा इसे पहुंचा दिया था। फिर कमांडर और उसका फौजी वहां पहुंचता है। इससे पहले वो मज़ीद तफसीलात बताता, लैंग जॉन अपने दोस्त को बचाने के लिए इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लैंग जॉन इनके साथ इनकी गाड़ी में बैठकर दूर हट जाता है, लेकिन इसका दोस्त इसी दौरान इस कार का पीछा करता है और वो इस कार को रोकता है। एक अजीम बॉक्सर होने के नाते वो वहाँ इस फोर्स के अरकान को सामना करती है और उन्हें नुकसान पहुँचाती है, और वो लैंग जॉन को इनसे बचाकर जल्दी भाग जाती है। फिर दोनों चचा योंग के पास जाते हैं और इनसे तमाम मालूमात के बारे में जानते हैं। अब इसके चचा योंग ने हकीकत बताए हुए और इसके वालिद इस कंपनी में मुलाजमत करते थे जहां वो ऐसी दवाएं बनाना चाहते थे जिसके जरिए वो किसी भी बीमारी का इलाज कर सके। जब सबको लैंग जॉन के वालिद की मौत का इल्म हुआ, फिर वो सब मायूस हो गए, तो उन्होंने भी इसके साथ अपने प्रोजेक्ट पर काम करना छोड़ दिया। अब लैंग जॉन योंग की हक़ाइक़ सुनकर अपने वालिद की मौत की वजह पूछता है। इस पर वो कहता है कि जब उसकी माँ एक बीमारी की वजह से मर गई, इसलिए इसके वालिद की हिम्मत हार गई थी, इसलिए इसने इस कंपनी में मजीद काम करने से मना कर दिया था। लेकिन कंपनी के चलाने वालों को आपके वालिद का यह फैसला पसंद नहीं आया, तो वो आपके वालिद को एक कमरे में बंद करके इसमें फायरिंग करके कत्ल कर देते हैं। ये जानकर लैंग जॉन बहुत जारहाना हो जाता है, लेकिन चचा योंग उसे मना कर देते हैं, कह रहे हैं कि इस कंपनी के खिलाफ कोई कदम ना उठाएं क्योंकि ये एक ताकतवर कंपनी है। इसी दौरान इस कंपनी का मालिक अपने आदमियों के साथ इनके पास पहुंच गया और वो लैंग जॉन से पहले योंग को मार डालता है। लैंग जॉन अपने चचा को अपने सामने मरते हुए देखकर गुस्से में आ गया, तो वो भी एक बार फिर वेयरवॉल्फ में तब्दील हो जाता है और वो सबसे लड़ने लगता है। लैंग जॉन को लड़ते हुए ग्रीन लेज़र शॉट मिला था, तो वो भी अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ गया था। इससे पहले वो इसे पकड़ते, लैंग जॉन के दोस्त ने उसे खिड़की से नीचे धक्का दे दिया, इसलिए वो लोग उसे पकड़ नहीं सकते। वो लड़का भी इसके पास आ जाता है और वो लैंग जॉन को कोई कदम उठाने से मना करता है क्योंकि वो अभी तक ठीक से तैयार नहीं थे। वो इसे समझाता है जब तक वो तुम्हें पकड़ ना लें, वो तुम्हारे दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये सुनकर लैंग जॉन ने इस पर एतमाद किया और उसका साथ भी दिया। अब लैंग जॉन ये जगह छोड़कर साहिल पर बैठा अपनी पुरानी यादें याद कर रहा था। इसने एक नज़र अपने लॉकेट पर भी डाली जिसमें इसकी और इसके वालिद की एक तस्वीर लगी हुई थी, और इसके साथ इसने दस्ताने भी पहन रखे थे। जब वो इस लड़के को सब कुछ बद दिखाता है, फिर वो इस जगह को समझता है जहां इसका बाप अपनी सांसें खो देता है। एक जगह थी, अब वो इस जगह मुंतकिल हो गए थे। जब लैंग जॉन वहां पहुंचता है तो वहां भेड़ियों के कुछ निशानात पाए जाते हैं। उसे वहां एक डब्बा नजर आता है और अपने लॉकेट की मदद से उसे खोल देता है। इसे इस बॉक्स में एक टेप मिलता है जो इसके वालिद ने इसके लिए दोबारा रिकॉर्ड किया था। वो लैंग जॉन को एक तजर्बे के बारे में बताता है कि इसने अपनी माँ को बचाने के लिए एक दवाई बनाई थी। सबसे पहले इसने इस तजर्बे को अपने ऊपर लागू किया और इससे पहले उसकी वालदा का इंतकाल हो गया था। फिर उसने इस तजर्बे को रोक दिया, लेकिन कंपनी ने इस दवा को बतौर हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कई लोग जान की बाजी हार गए। तो वो सब फैसला करते हैं कि वो इस कंपनी के तमाम गैर कानूनी ताक़ुब को रोकने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तो इस कंपनी का सरबराह योंग की लेबोरेटरी में था और वो वहाँ से सारे सबूत मिटा रहा था। फिर उन्हें वहाँ एक चीज़ मिलती है, इस कंपनी का सरबराह इस वक्त मारा गया
जब वो इस चीज़ की झलक को देख रहा था। दूसरी तरफ लैंग जॉन तियरबाद की इस लेबॉरेटरी तक पहुंच चुका था, लेकिन वो सब अपने हथियार की मदद से इस जगह के सिक्योरिटी गार्ड्स को ख़त्म कर देते हैं। फिर लैंग जॉन के दोस्त को भी वहाँ दिखाया गया है। जब वो मुशाहिदा करती है तो वो अपने साथ वाले कमरे में अपने भाई को भी देखती है। अपने भाई को देखकर वो उसे यकीन दिलाती है कि लैंग जॉन उन्हें यहाँ से आज़ाद करवाने ज़रूर आएगा। बहुत से लोग वहाँ दाखिल हो जाते हैं, लेकिन जब लैंग जॉन इस तजर्बागाह में आता है, वो अपने अंदर मौजूद वेयरवॉल्फ की सुपर पावर की वजह से सबको ख़त्म कर देता है। इसके बाद उन्हें इस कंपनी के खिलाफ सबूत जमा करने पड़ते हैं, तो वो सब मुख्तलिफ सिमतों में चले जाते हैं। लेकिन लैंग जॉन अपने दोस्त को बचाने के लिए इस जगह पहुंच जाता है। जब वो अपने दोस्त को बचाने के लिए चाबियां ढूंढ रहा था, फिर चचा जोंग वहाँ नमूदार होते हैं, जो उसे कहते हैं उन्होंने वो दवा इसके खून से बनाई है, वो दवा जिसकी तैयारी लैंग जॉन के वालिद ने की थी। इससे पहले लैंग जॉन ने एक लफ्ज़ बोला तो चचा और वालिद की वीडियो कैसेट चलाई, जिसमें योंग कंपनी के इरकान के साथ मिलकर वो कीमियाई हथियार बनाना चाहता था, लेकिन लैंग जॉन के वालिद उसे ऐसा करने से रोक रहे थे। चुनांचे उसने लैंग जॉन के वालिद को उस कमरे में छोड़ दिया जिसमें आग लग गई थी। वो ये वीडियो देखकर लैंग जॉन समझ गया था कि इस कंपनी का जोड़ तोड़ करने वाला कोई और नहीं बल्कि चचा जोंग है, जिसने अपने बाप की जान ले ली थी। इसी दौरान इस कंपनी का हेड असिस्टेंट भी आता है, जो बताने लगता है कि इस कंपनी का जोड़ तोड़ करने वाला कोई और नहीं बल्कि योंग है, तुम्हारा चचा। वो लैंग जॉन से सच कह रही थी, क्योंकि योंग ने कंपनी के सरबराह को भी मार डाला था। तो वो असिस्टेंट योंग पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन वो इस बात पर परेशान नहीं हो रहा था, क्योंकि दवाई जोन के खून से बनती है। इससे पहले इसके जिस्म में ये इंजेक्शन लगाया गया था। वो वेयरवॉल्फ में तब्दील हो जाता है और लैंग जॉन भी वेयरवॉल्फ में तब्दील हो जाता है। बाद में वहाँ इनके दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान इन दोनों बाहर आ जाते हैं। इसके बरक्स लैंग जॉन का दोस्त और इसका भाई भी बाहर आ जाते हैं। अब लैंग जॉन का दोस्त उसे बचाने के लिए योंग के गले में रस्सी बांधता है, लेकिन योंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई नुकसान होता है। इसके बरक्स वो लैंग जॉन के दोस्त को जख्मी कर देता है। इससे पहले इसने इसे मार डाला। फिर लैंग जॉन रस्सी को ऊपर की तरफ खींचता है। लैंग जॉन अपने दोस्त को इलेक्ट्रिक केबल देता है। इसका इस्तेमाल करते हुए वो योंग को ख़त्म कर देते हैं। फिल्म के आखिर में लैंग जॉन अपने घर में किताब पढ़ते नजर आते हैं। खबरों से मालूम हुआ है कि तमाम लापता अफराद मिल चुके हैं, लेकिन इन सब के जिस्म पर एक पुरस्कार निशान है। लेकिन लिंग जोंग ने इस कंपनी की हकीकत को सबके सामने शो कर दिया और फिल्म इस सीन पर मुकम्मल हो जाती है। देखने के लिए शुक्रिया। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। आप जिस मूवी को पसंद करते हैं आप उसका नाम हमें कमेंट में कीजिए, हम आपको उस मूवी को एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। शुक्रिया।